everybody, how are you all? I hope you all are absolutely amazing. And today I am here, your chemistry master teacher Divyasha Ma'am, to tell you about NTSE exam. Welcome to the session बच्चों and हम बात करेंगे NTSE के बारे में. We have already talked about 3 exams in your Know Your Exam series, that is J Mains, right, NEET and J Advanced, and today we are going to talk about NTSE. So why NTSE? Why should we give NTSE? क्या मिलेगा NTSE देके? What will be the eligibility criteria for NTSE? What will be the exam pattern? When does this exam happen? Who can give this exam? Everything I'm going to tell you in this session. And yes, I'm going to help you with the preparation techniques also, that from where you should study for this exam. Okay, Bachapadi? So I hope you all are ready to know such more informative things, right? Correct? So let's start with our session. The first question which comes in our mind is, what is NTSE? Correct? तो NTSE जानने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि NTSE का फुल फॉर्म क्या है, राइट? तो NTSE का फुल फॉर्म जिन बच्चों को ऑलरेडी पता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो कि क्या है NTSE का फुल फॉर्म, और जिन्हें नहीं पता है उन्हें आज पता चल जाएगा. एंड यस, डोंट फॉरगेट टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शंस कि क्या आपको और जानना है, व्हाट यू वांट टू नो मोर, व्हाट यू ऑलरेडी न्यू, एंड व्हाट इंफॉर्मेशन डिड यू गेट टू नो बाय दिस सेशन. ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं. ओके, लेट मी टेल यू व्हाट इज NTSE. लेट्स स्टार्ट. So NTSE full form is National Talent Search Exam. क्या है full form? National Talent Search Exam. It is conducted by NCERT. NCERT तो सबको पता है, right? So NCERT जो है National Talent Search Exam करती है, जिसको हम short form में बोलते हैं NTSE. National level exam है, लेकिन क्या एक ही एग्जाम होता है? वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगी कैसे होता है नेशनल लेवल. लेट्स स्टार्ट विद दैट. Which body conducts the exam? As I have already told you, NCERT. NCERT जो है वो आपका ये एग्जाम कंडक्ट कराती है नेशनल लेवल का. ओके बच्चों, गॉट इट? फर्स्ट क्वेश्चन. आई होप the full form of NTSE and who conducts this exam, that is clear, right? So now when this exam happens and how many students give this exam? So every year around 8 to 10 lakh students give this exam. Okay, so it can vary also. It's just an estimated number. Okay, so 8 to 10 lakh students usually give this exam, and candidates apply for this program, but only 2,000 to 3,000 students, approximate idea, get selected for awarded for scholarship. Okay, those who are awarded scholarship like after stage 2. So actually it happens in stage 1 and stage 2. I will tell you all the details. Okay, so around 2,000 to 3,000 students are awarded the scholarships. Okay बच्चों पैरी, ठीक है? तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है ये एग्जाम, बट ऑफ कोर्स हमारी हेल्प से और आपके हार्ड वर्क से यू विल क्लियर दिस, हाँ, इफ यू वांट टू. करेक्ट? सो NTSE is one of the most prestigious exams in the country. Why? Because आपके नाम के आगे ना ठप्पा लग जाता है ना? ठप्पा याद है? भगवान ने ठप्पा लगा के नहीं भेजा, बट आप लगा सकते हो वो ठप्पा NTSE का एग्जाम देके कि ये NTSE स्कॉलर है, राइट? तो एक मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम है. ऐसा नहीं है कि आपने 10th में दिया तो वहीं तक आपकी इसकी वैल्यू है. व्हेन यू गो फॉर जॉब ऑल्सो, व्हेन यू लेट्स से यू बिकम अ टीचर, सो दैट इज योर क्वालिफिकेशंस में आप इसको ऐड कर सकते हो. तो एक एक्स्ट्रा information you can tell, right, about you. So that is also important. And what will be the type of exam pattern? ये बहुत easy है, हाँ, easy है. MCQ, right? It's objective type exam होगा आपका. MCQ होगा, multiple choice question, right? और objective type रहेगा पूरा का पूरा एग्जाम. और इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी, उसके लिए आप सुनते जाइए, राइट? तो एक तो हो गया ऑब्जेक्टिव एग्जाम. Now, जैसा कि मैंने बताया, what will you get in this? NTSE gives a chance to get lifetime recognition as NTSE scholar. ठीक है? So this is your, एक ठप्पा certificate, and you will get to know that what is the value of this, right? When you go for getting any jobs, or when you go for taking admissions,
राइट, इन योर ग्रेजुएशन, इन योर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये एक सर्टिफिकेट है जो आपकी वैल्यू को इंक्रीज करता है। सो यू विल बी अ NTSE scholar if you clear this exam, ठीक है। So it will give you recognition. Now what is advantage? Advantage एक और है बहुत अच्छा, that is you can get practice for competitive exam after class 12th, है ना। जब आप 10th क्लास में एक competitive exam देते हो, आप उसमें बैठते हो, आप उसको क्लियर करते हो या नहीं करते हो, एनी हाउ यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर द फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट बच्चा पारी। 12th के बाद आपको जेई देना है, नीट देना है, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, सीए करना है, कुछ भी करना है, यू गेट टू नो कि किस तरह से होता है, आप थोड़े से एक्सपीरियंस हो जाते हो, और एक्सपीरियंस ऑलवेज वर्क्स, हेल्प्स, राइट। तो एक तो ये एडवांटेज है। दूसरा बहुत ही अच्छा एडवांटेज है स्कॉलरशिप, और मैं ये भी कह सकती हूँ पॉकेट मनी। हाँ, तो जिनको पॉकेट मनी थोड़ी सी भी कम लगती है उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इट्स जस्ट अ जोक, लेकिन यस स्कॉलरशिप विल बी अवॉर्डेड पर मंथ। कितना क्या मिलेगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो स्कॉलरशिप विल ऑल्सो हेल्प्स यू, राइट, इट विल बी लाइक पॉकेट मनी फॉर यू। स्कॉलरशिप अंटिल PhD, इफ यू लेट्स से डू डॉक्टरेट, हाँ, अगर आप PhD करते हो तो वहां तक भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर एग्जाम, योर परफॉर्मेंस इन योर UG यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, ऑन योर इन योर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। तो वो तो एक क्राइटेरिया, एक जनरल क्राइटेरिया तो रखना पड़ेगा, बट आप PhD तक स्कॉलरशिप्स ले सकते हो। कितना मिलेगा मैम, कितना मिलेगा ये तो बताओ, राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है अभी। तो स्कॉलरशिप जो है दैट विल बी 1250 रुपीज, हाँ, तो आपको 1250 रुपए पर मंथ मिलेंगे ड्यूरिंग योर क्लास 11th एंड 12th। ओके बच्चा पारी, ड्यूरिंग योर क्लास 11th एंड 12th आपने 10th में ये एग्जाम दिया, आपने इसको क्लियर कर लिया, यू गेट अवॉर्डेड स्कॉलरशिप, तो आपको हर महीने 1250 रुपए मिलेंगे जब तक आपका क्लास 11th और 12th चल रहा है, ठीक है। ऑफ कोर्स देयर विल बी सम बेंचमार्क, हाँ, कि हाँ 60% से ऊपर आना चाहिए, 50% से ऊपर आना चाहिए, ऐसा तो होना ही चाहिए इफ यू वांट टू कंटिन्यू योर स्कॉलरशिप फॉर लॉन्गर टाइम। तो ये है, ठीक है। नाउ अब थोड़े से बड़े हो गए तो पॉकेट मनी तो बढ़ती है ना, राइट। तो 11th-12th में मिलेंगे 1250, बट इन योर UG एंड PG कोर्सेज, आपके अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में आपको मिलेंगे 2000 रुपीज पर मंथ ड्यूरिंग योर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, ठीक है। तो पॉकेट मनी बढ़ जाएगी थोड़ी सी। तो बेसिकली मम्मी पापा से तो मिल ही रही है और गवर्नमेंट से एक्स्ट्रा मिलेगी, और सबसे बड़ी बात है आपके नाम के आगे एक टैग लग जाएगा, यू आर अ NTSE स्कॉलर, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ये भी साथ में इंपॉर्टेंट ही है, राइट, इक्वली इंपॉर्टेंट। तो आपके जो कैंटीन का थोड़ा बहुत ऐसे चाय पानी का खर्चा होगा वो निकल जाएगा, हाँ, और या फिर ये कहें कि बुक्स, कुछ अच्छी बुक्स खरीद के पढ़ सकते हो, मतलब कैंटीन क्यों मैम, राइट। तो आपको ये स्कॉलरशिप्स मिलेंगी, राइट। आपको 12th में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे। Which grade students can appear for NTSE? Yes, this is important to know कि कौन से ग्रेड के स्टूडेंट्स NTSE एग्जाम दे सकते हैं। So these are those students which are studying in class 10th, right? जो ऑलरेडी क्लास 10th में हैं, जो क्लास 10th कर रहे हैं, वही स्टूडेंट्स दे सकते हैं, ठीक है। NTSE is given by students studying in class 10th. Now, what will be the eligibility criteria? Yeah, that you should know that candidates currently studying in class 10 standard can apply for this. नंबर 1 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऐसा नहीं है आप 12th में जाके कहो कि मैं मुझे देना है, नो, ठीक है। तो नंबर 2 दैट इज कैंडिडेट्स करंटली स्टडिंग इन क्लास 10th, इंडियन सिटीजन स्टडिंग अब्रोड कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन NTSE। मतलब इंडिया के बच्चे तो दे ही सकते हैं, इंडियन सिटीजन जो अब्रोड में है वो भी NTSE एग्जाम में फिर हो सकते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक नीट एग्जाम ऑल्सो, हाँ, ओके। सो अब देखते हैं इस एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, कितने स्टेजेस में होता है, क्या आता है, कौन से सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर करना है, कितना प्रिपेयर करना है ना। वी शुड नो दैट ऑल्सो, राइट। तो पहले तो ये बताओ मजा आ रहा है समझने में, राइट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज पर्सपेक्टिव्स कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। वाई NTSE, आई होप इट इज क्लियर, है ना। वाई शुड यू गिव NTSE, दैट इज ऑल्सो क्लियर। नाउ व्हाट आर द 2 स्टेजेस, व्हाट विल बी द एग्जाम पैटर्न, that we are going to talk about. तो अभी तक अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन अच्छा लगा है, you know that ना, hit the like button, ठीक है। तो जल्दी से हिट करते चलो, साथ साथ लाइक बटन पे टैप तो करते ही रहना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, हमारा कितने स्टेजेस में होता है, 2 स्टेजेस में, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू हाउ 1 स्टेज, फर्स्ट स्टेज में क्या आता है, when is this exam conducted,
नंबर 1 क्वेश्चन है ना, कब होता है एग्जाम। तो स्टेज 1 जो एग्जाम का है वो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में होता है एवरी ईयर, है ना। अभी पेंडेमिक की वजह से थोड़ा बहुत डेट्स चेंज हुए हैं लास्ट ईयर, नो डाउट। और सेकेंड स्टेज जो है वो आपका मई में होता है, तो इस बार जो है वो थोड़ा पोस्टपोन होकर जून में हुआ था, तो वो चेंज हो गया, मतलब ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर्स वो चेंज हो गया। लेकिन यूजुअली जो एग्जाम होता है स्टेज 1 आपका फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में होता है, एंड स्टेज 2 इट टेक्स प्लेस इन May next year. That means, for example, if you are in 10th, you are giving first stage in first week of November, right? Mostly on first Sunday होता है, ठीक है, first Sunday, right? And stage 2 जो है वो आपका होता है ऑब्वियसली जब 10th कंप्लीट कर लोगे ना नेक्स्ट ईयर में, जो भी मई आएगा, राइट? तो स्टेज 1 एंड स्टेज 2 दो स्टेजेस में आपका ये एग्जाम कंडक्ट होता है। ये क्लियर हो गया किड्स? आई होप इट इज क्लियर नाउ। नाउ व्हाट विल बी द पैटर्न और क्या आता है क्या नहीं, ये सब मैं आपको बताती हूँ। स्टेट एंड यूटी लेवल, मतलब ये जो स्टेज 1 है ये स्टेट लेवल पर होता है, ठीक है, ये स्टेट लेवल पर होता है, ये नेशनल लेवल पे नहीं होता। हर स्टेट अपना एग्जाम कंडक्ट कराती है, वेदर हरियाणा हो गया, यूपी, बिहार, पंजाब, तो ये हर एक अपनी अपनी स्टेट्स जो हैं वो अपना एग्जाम कंडक्ट कराती है। क्लियर हुआ, राइट? तो स्टेट लेवल एग्जाम होता है स्टेज 1। एग्जाम हेल्ड होता है इन ऑफलाइन मोड, ऑफलाइन मोड में होता है, ठीक है, अभी तक ऑफलाइन मोड में ही होता है एनटीएससी। क्लियर? नाउ 2 सेक्शंस होते हैं, दोनों स्टेज का पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर है, मतलब पैटर्न तो सिमिलर ही है, क्या डिफरेंस है आई विल टेल यू। पैटर्न सिमिलर है, ध्यान से समझ लेना। 2 सेक्शंस में डिवाइड होता है। नंबर 1 सेक्शन इज मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको हम मैट बोलते हैं, ठीक है। तो मैट हो गया जिससे आपको 100 क्वेश्चंस आते हैं, ओके। 2 सेक्शंस हुए। नंबर 1 सेक्शन हो गया मेंटल एबिलिटी टेस्ट मैट, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस आते हैं, एंड सेकंड हो गया स्कोलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम सैट बोलते हैं, उससे आपको 100 क्वेश्चंस आते हैं। तो 100 क्वेश्चंस फ्रॉम मैट एंड 100 क्वेश्चंस फ्रॉम सैट इन बोथ ऑफ द स्टेजेस। तो 2 पार्ट्स में होगा ये एग्जाम, ध्यान रखना, हाँ 2 पार्ट्स में होगा। Now, SAT will be based on science, mathematics and social science. Mental ability test तो आपको पता चल ही गया होगा ना, किस किस क्या क्या चीजें आती हैं, आई विल टेल यू दैट ऑल्सो, उसमें क्या क्या कवर होता है। SAT जो है वो आपका साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस पे होता है। मैं आपको ये भी बताऊंगी इनमें सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या होता है, ठीक है। सो नाउ लेट मी टेल यू अबाउट टाइप ऑफ टेस्ट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस, दैट इज MCQ टेस्ट, ठीक है। So it consists of 200 objective type questions to be solved within a duration of 240 minutes, ठीक है। तो 200 objective type question मतलब 100 क्वेश्चन जो आपके मैट के थे उसके लिए आपको 120 मिनट्स मिलते हैं, और 100 क्वेश्चन जो आपके सैट के थे उसके लिए भी आपको 120 मिनट्स ही मिलते हैं, मतलब 2 आवर्स फॉर ईच पेपर। ये दोनों पेपर एक ही दिन में होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया और ये आपका हो गया, तो टोटल 200 क्वेश्चन हो गए एंड 240 मिनट्स हो गए, ठीक है बच्चों। फाइनली तो एग्जाम पैटर्न भी मैं आपको दिखा देती हूँ, स्टेट लेवल एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। दिस इज योर एग्जाम पैटर्न। पेपर 1 mental ability test math, and paper 2 scholastic aptitude test. Let me change the color of pen, yeah, scholastic aptitude test SAT, okay. So there will be 100 questions for both and 100 marks will be awarded, 1 mark for one each question, right? And 120 minutes for math, 120 minutes for SAT, that means 240 minutes for both the papers, ठीक है, total, correct. So if I talk about stage 2 exam, तो वो नेशनल लेवल पे होता है। तो स्टेज 1 से जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं स्टेट वाइज, उनके बीच में वो एग्जाम होता है, बिटवीन दो स्टूडेंट्स दोज हु हैव सिलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, राइट। तो स्टेज 2 जो हो गया वो नेशनल लेवल पे हो गया, और ये एग्जाम स्टेज 1 तो स्टेट्स अपना कंडक्ट करवा रही थी, राइट। स्टेज 2 का जो एग्जाम है दैट कंडक्टेड बाय NCERT ओनली, ठीक है। और पेपर का जो पैटर्न है वो सेम रहता है, ऑलमोस्ट सेम एज स्टेज 1 ऑफ द एग्जाम, बट देयर विल बी फ्यू मल्टीपल करेक्ट आंसर्स क्वेश्चंस आल्सो। ये ध्यान रखना कि स्टेज 2 थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है स्टेज 1 से, और उसमें मल्टीपल करेक्ट आंसर्स क्वेश्चंस भी आते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन के 2, मतलब जैसे अभी MCQs में तो आप एक ही क्वेश्चन का एक ही आंसर है, ABCD में से एक ही ऑप्शन चूज करोगे, बट इन स्टेज 2 देयर विल बी फ्यू क्वेश्चन इन विच यू हैव मल्टीपल आंसर्स, लाइक A and B भी हो सकता है, ABC भी हो सकता है, तो दिस जस्ट लाइक दैट, ओके। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट आल्सो, right? So stage 2 हो गया। Now there will be no negative marking, that is very advantageous for us, right? कि negative marking नहीं है, तो कई बार होता है ना हमारा मन करता है कि अरे यार गेस
इंकी पिंकी पॉन्की करके लगा दो अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है तो, राइट, बट हम नहीं लगा पाते हैं अगर नेगेटिव मार्किंग होती है, तो यहाँ पे आपके पास कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है स्टेज 2, राइट, ओके, गॉट इट। सो अब मेंटल एबिलिटी टेस्ट में क्या क्या कवर होता है दैट ऑल्सो आई कैन टेल यू, एंड इन सैट ऑल्सो क्या क्या कवर होता है, राइट। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है, दिस सेक्शन वुड टेस्ट योर रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है बच्चों पारी, कि क्या आपकी रीजनिंग एबिलिटी है। याद है इस बहुत सारे क्वेश्चंस आपने ऐसे देखे होंगे, लाइक बुआ की चाची का बेटा आपका क्या लगा, ब्लड रिलेशन काइंड ऑफ, दीज ऑल थिंग्स कम्स अंडर टाइम एंड वर्क, डायरेक्शंस, ये सब इसमें आते हैं। लेट मी टेल यू व्हाट कम्स अंडर दिस। और ये आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को भी टेस्ट करेगा, रीजनिंग एबिलिटी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को आपकी टेस्ट करेगा, विजुअलाइजिंग स्पेस एंड स्पेस ओरिएंटेशन को भी टेस्ट करेगा। सो बेसिकली कंप्लीट मेंटल वाला जो पार्ट होता है, राइट। अब कौन कौन से मैथ के टॉपिक्स हैं, लाइक अल्फाबेट टेस्ट कैन बी देयर, राइट, एनालॉजीज, ब्लड रिलेशंस, क्लॉक कैलेंडर्स, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, क्यूब्स, डाइज, डायरेक्शन सेंस, इनकम्प्लीट फिगर्स, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मिसिंग कैरेक्टर, नंबर एंड रैंकिंग, सो ऑल these things comes under math, ठीक है। And if I talk about another like non-verbal classification, non-verbal figure partitions, paper folding, puzzle test, series completion, Venn diagram, okay, water mirror image, right, ratio, proportion, cycloism, profit loss, simple time and work, so all these things comes under your math topic, right। तो ऐसा नहीं है कि मैम एक उससे पक्का क्वेश्चन आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, दिस ऑल कैटेगरी कम्स अंडर मैथ, तो किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है, दैट्स द पॉइंट, ओके। नाउ स्कोलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट जो सैट है आपका, दोनों स्टेजेस में दोनों एग्जाम होंगे, मैथ एंड सेट मैंने बता ही दिया आपको, तो आप एक स्टेज के लिए भी प्रिपेयर करते हो तो दूसरे के लिए अपने आप प्रिपेयर हो जाते हो, राइट। तो सैट वुड टेस्ट यू इन फील्ड्स ऑफ मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस, उसमें भी कैटेगरी डिवाइड है, हाँ। जो आपका मैथमेटिक्स है, आई एम सॉरी, या जो आपका मैथमेटिक्स है वो 20 मार्क्स का आता है, सोशल 40 मार्क्स एंड साइंस 40 मार्क्स। अब साइंस में भी फर्दर डिविजन हो जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का, ठीक है। तो सोशल 40 मार्क्स का आ रहा है अकेला सोशल, तो ये चीज भी है। सोशल में आपके पास आपको सब पता होना चाहिए, थोड़ा जीके वीके का भी पता होना चाहिए, आपकी स्टेट, अगर स्टेज 1 की बात करें तो अपनी स्टेट से रिलेटेड हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, तो वो सब आपको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैथ और सैट की प्रिपरेशन के लिए क्या क्या आपको रेफर करना है, दैट विल ऑल्सो आई विल टेल यू, ठीक है बच्चों पारी। सो यहाँ तक का इन्फॉर्मेशन आई होप इट इज क्लियर एंड सब समझ में आ गया होगा, राइट। मैं पढ़ाते पढ़ाते इसके अंदर खो गई हूँ, मुझे लगता है आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, राइट। तो आई होप मैथ और सैट आपको क्लियर हो गया है कैसे वर्क करता है। नाउ सैट आपका कौन सा फील्ड टेस्ट करेगा, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस। और क्वेश्चंस, यस दैट इज रियली इंपॉर्टेंट कि सैट में जो क्वेश्चंस होंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन सिलेबस ऑफ क्लास 9th एंड 10th ओनली, हाँ। तो ये मत सोचना 11th 12th का भी पढ़ ले उसमें से भी पेपर आ जाएगा, आएगा 9th 10th का ही, उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके, थोड़ा सा घुमा फिरा के, हाँ जरा घुमा फिरा के कहना, वैसे आ जाएगा, ओके, समझ गए। तो बस इतना ही डिफरेंस होगा और कुछ नहीं। So question will be based on syllabus of class 9th and 10th only. So don't worry at all. How to crack it? I know the question is coming in your mind. So 9th and 10th textbooks for NTSE exam. Perfect. सबसे पहले तो अपनी स्टेट बोर्ड की बुक्स लो, जो भी आपकी बुक्स हैं स्टेट बोर्ड की बुक्स को फॉलो करो और एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो करो मोस्ट प्रोबेबली, और उसमें थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन, थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस, कोई रेफरेंस बुक भी फॉलो कर सकते हो, अपनी टीचर्स की गाइडेंस ले सकते हो, राइट। अप्लाई कैसे करना है, आपके स्कूल जो है वही अप्लाई करवा देते हैं आपको, वही आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। और इनकेस आपके स्कूल में इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलता है या कुछ भी ऐसा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक भी दे दिया है, आप एनसीईआरटी की साइट से अपडेटेड रह सकते हो कि कब होने वाला है। आप अपने टीचर, स्कूल टीचर से पूछ सकते हो कि कब ये एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, प्लीज लेट अस नो, वी आर इंटरेस्टेड फॉर दिस, हाँ। So 9th and 10th textbook for NTSE exam, and choose your reference books wisely and stick to them. If I talk about for math के लिए आप reference books ले सकते हो, like आपका यूसेंट का बुक आता है, right, वो आप ले सकते हो, अरिहंत का बुक आता है, तो ये बुक्स आप चूज कर सकते हो और आप अपने टीचर्स की गाइडेंस ले सकते हो, राइट। वेदांतु से आप NTSE की प्रिपरेशन कर सकते हो। सो आप अपने पर्टिकुलर टीचर जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो वहां से उनको गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है। सो रेफरेंस बुक वाइजली मतलब चूज करो और उसी पे स्टिक रहो। ये मत सोचो कि 10-15 बुक्स पढ़ लूं मैम तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, यू विल गेट कंफ्यूज्ड, हाँ। सो डू नॉट बिल्ड अ मैसिव लाइब्रेरी फॉर योरसेल्फ, स्टिक टू फ्यू बुक्स, हाँ, फ्यू गुड बुक्स, ओके। सो मैथ के लिए आप वो कर सकते हो और सेट के लिए आपकी खुद की टेक्स्ट बुक्स,
कोई भी जनरल नॉलेज की आप बुक खरीद के पढ़ सकते हो, अच्छी बुक. ओके, सो कंटेंट शुड हैव इनफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर सैट एंड मैथ सेक्शन. जो भी आप चूज करो ये देख लेना कि उसमें इनफ प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, सिर्फ ये नहीं हो कि गप मारी हुई है, राइट, और ज्यादा कुछ दे नहीं रखा. तो ये चीज ध्यान रखना कि हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस हो, राइट. तो वो सब चीजें आप चेक कर लेना कोई भी बुक फॉलो करने से पहले. ओके, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर आप और डिटेल्स देखना चाहते हो किस साइट पे आपको ये दिखेगा वो सब आपको मिल जाएगा. सो वी विल हेल्प यू क्रैक इट, ऑफ कोर्स वी विल हेल्प यू क्रैक इट. तो अभी तो मुझे आपको एग्जाम के बारे में बताना था, व्हाट इज दिस एग्जाम, व्हाट विल बी द पैटर्न, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गिव दिस एग्जाम, एंड यस यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहती हूँ, दैट इज रिजर्व्ड कैटेगरी. तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज एक मार्क्स है, ठीक है. जैसे आपके अनरिजर्व जनरल कैटेगरी जो है उनके लिए मिनिमम क्या कह सकते हैं पासिंग मार्क्स जो है वो 40% है, ठीक है. और जो रिजर्व्ड हैं जैसे SC ST OPC और जो भी है उनके लिए 32-35% रहता है. तो वो थोड़ा सा है, ठीक है, राइट. तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि हाँ उस हिसाब से कोटा होता है, तो उस हिसाब से आपको और ज्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा जिसका जो भी कोटा है, राइट. ओके, क्लियर बच्चों पैडी. सो ऑफ कोर्स वी विल हेल्प यू क्रैक इट, एंड द सेकंड थिंग इज प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, दैट्स इट. So I hope you got enough information about NCSE in today's session. So thank you very much, and don't forget to like and share the videos so that your friends can also get benefited by this. Your siblings, your even you can show this to your parents also, that those can keep in your mind, keep in their mind कि हाँ अब मेरे बच्चे का NTSE तो फिल करवाना है. हाँ, so I will suggest you all should appear for that exam. आप सबको अपेयर करना चाहिए, those who are in class 10th, ठीक है. तो आप सबको अपेयर करना चाहिए, एटलीस्ट यू विल लर्न समथिंग, राइट. और कुछ नहीं तो सीखने को तो मिलता है, और ये तो आपको पता ही है हमारा मोटो है कि सीखना बंद तो जीतना बंद. So that's why keep learning, keep winning. हाँ, don't forget to press the bell icon to get the latest update. Don't forget that to know more exams. ठीक है, आपको बहुत सारे एग्जाम्स के बारे में हम इस सीरीज में बताने वाले हैं, तो stay updated, हाँ, and stay tuned. And don't forget to subscribe the channel. Do it right now if you want to know such more amazing sessions, such more amazing things. Okay. And if you want to reach out to me, you can mail me at divyasha.sidhana@vedantu.com, and you can send me a message on Telegram also @divyasha. So thank you, kids. Bye bye. Take care. Stay safe. Stay happy. Stay healthy.